Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lecture, we have discussed about the peripheral vascular disorder, that is about the disorder related to arteries. With the continuation of the peripheral vascular disorders, now we discuss about the venous disorder. In venous disorder, we discuss about what is the venous thrombosis, what is the deep vein thrombosis, what is the thrombophlebitis, what is the phlebothrombosis, what is the chronic venous insufficiency leg ulcer, and the varicose vein. So what is the DVT and thrombophlebitis and the phlebothrombosis? For the clinical purpose, it is used, the word they are used interchangeably. The venous thrombosis is the blood clot that form within a vein that occur in any vein. The common occur DVT in the lower extremities. There are the different type of the thrombophlebitis. There is a thrombophlebitis, GVT thrombophlebitis, and deep vein thrombosis, phlebothrombus, and the phlebitis. Thrombophlebitis. The thrombophlebitis is the thrombo that is associated with the inflammation, most frequently occur in the deep vein of the lower extremities. The deep vein thrombophlebitis is commonly referred to as the DVT, more serious than the superficial thrombophlebitis because it presents a greater risk for the pulmonary embolism. The phlebothrombosis is the thrombus without inflammation, and the thrombus develop initially in the vein as a result of stasis and hypercoagulability. And the phlebitis means vein inflammation associated with invasive procedures. They are the what are the causes of the thrombophlebitis? The exact cause is unknown. The most common thrombus formation has been associated with Virchow triad. The Virchow triad is the stasis of the blood, endothelial injury. If there is some problem in the walls of veins, then the circulation of the blood is disturbed, and it causes the thrombus formation, hypercoagulability, and the altered the blood coagulations. Pathophysiology of the thrombophlebitis. The venous stasis occur when the blood flow is reduced and when the veins are dilated as with some medications आ जाते हैं. जब भी वेन्स में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा. जब ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो वहाँ पे सेल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. जब सेल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. The vessel vein injury, damage to the lining of the blood vessel, create the site of the clot formation. Direct trauma to the vessel as with the fracture and dislocations. They alter the blood coagulation and hypercoagulability, and it cause the abrupt withdrawal coagulant medications. Venous thrombi. The venous thrombi is an aggregate of the platelet that is attached to the vein wall along with the tail-like appendage containing the fiber WBCs and RBCs. मतलब हमारे वही बात है कि प्लेटलेट ब्लड जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जा रही है वहाँ किसी वजह से डिस्टर्ब है तो प्लेटलेट वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं और वहाँ पे एक टेल लाइक अपीयर बनते हैं. जिस फ्लो में ब्लड जा रहा होगा उसी फ्लो में जो वो थ्रोम्बस बन जाएगा जिसकी वजह से ब्लड के फ्लो में रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास. ठीक है. एंड द रिस्क फैक्टर फॉर द DVT इज़ द एंडोथेलियल डैमेज. किसी भी वजह से ट्रॉमा, सर्जरी, वाई की वजह से, सेंट्रल कैथेटर की वजह से, वीनस स्टेसिस की वजह, कोएगुलेबिलिटी, कैंसर, प्रेगनेंसी की वजह से. तो ये सारी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से DVT के चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चांसेस हैं जिसकी वजह से ये रिस्क इंक्रीज़ कर सकते हैं. पेशेंट आपके साथ कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट या तो सिम्टोमेटिक होगा या ज़्यादा पेशेंट जो होती है ज़्यादा एसिम्टोमेटिक या फिर एसिम्टोमेटिक होगा. सिम्टोमेटिक है इसमें पेशेंट में ज़्यादा जो काफ मसल्स होते हैं उसमें टेंडरनेस और पेन होगी. सडन ऑनसेट ऑफ द यूनिलेटरल स्वेलिंग ऑफ द लेग और फ्लैगमेशिया सिल्वर हो जाएगा हमारे पास पेशेंट को. लिम्ब में पेन होगी, फीलिंग ऑफ द हैवीनेस होगा, फंक्शन इम्पेयरमेंट, एडीमा, टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास. ठीक है. डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की वेन में थ्रोम्बस बन गया तो इस एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी. जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी या रुक जाएगी तो वहाँ पे एडीमा स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे सेल की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास. ठीक है. तो लास्ट टाइम मैंने एक आपको बताया था व्हाट इज़ द होमन साइंस. जब आप होमन साइन उसमें से चेक करेंगे हमारे पास. ठीक है. द पेन इन द कफ ऑन द डोर्सोफ्लेक्शन फुट हो जाएगी. अपीयरेंस से ओनली 10% ऑफ द क्लाइंट विद द DVT आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. असेसमेंट आपने कैसे करनी है हमारे पास. ठीक है. एज एन ऑब्जर्व फॉर द वार्म, एडीमा, स्वेलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ को चेक करना है हमारे पास. ठीक है. टेंडरनेस को चेक करना है. पल्मोनरी हमारे पास एम्बोलिज्म इसको चेक करना है हमारे पास. ये डायग्राम में आपको नजर कि किस तरह पेशेंट की अगर फीमेल है
वहाँ पे DVT भी है तो उसका लाइक इस तरह हमारे पास थाई अपीयर करेगी। फिर हमारे पास थ्रोम्बस सुपरफिशियल वेन आ जाता है। द पेन एंड टेंडर रेडनेस एंड वार्म के साथ ट्रीटमेंट इसका किस तरह करना है, एट होम पे ज़्यादा बेडरेस्ट करना है, जो लेग है उसको एलिवेट करना है, एनाल्जीजिया एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन को यूज़ करना है। अपर एक्सट्रीमिटी वीनस थ्रोम्बस नॉट इज कॉमन एज द लोअर एक्सट्रीमिटी थ्रोम्बस आ जाता है हमारे पास, ठीक है। मोस्ट कॉमन विद द कैथेटर वगैरह जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ज़्यादा चांसेस होते हैं वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के ज़्यादा है हमारे पास। टेस्ट आप कौन सा करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वीनोग्राफी का, डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, डॉपलर फ्लो स्टडीज़ करवाएंगे हमारे पास, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है इसकी वजह से, इसकी वजह से क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, इंक्रीज वीनस प्रेशर है, वेरिकोसाइटिस है हमारे पास, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हमारे पास, ठीक है। इंक्रीज डिस्टल प्रेशर है, फ्लूइड स्टेसिस आ जाता है। मैनेजमेंट आपने ज़्यादा इसकी मैनेजमेंट नॉट से रेस्ट है, ड्रग थेरेपी के प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करने हैं हमारे पास, ठीक है। रेस्ट में पेशेंट को आपने क्या करना है, एलिवेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ करनी है हमारे पास, ठीक है। पेशेंट को साथ में हमारे पास सॉक्स टू द अफेक्टेड एरिया, ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट सॉक्स एंड एलिवेटेड फॉर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द पल्मोनरी एम्फीज़ेम और चेस्ट डिजीज और चेस्ट पेन को प्रिवेंट करना है। मेडिकेशन पेशेंट को देनी है, इसको प्रिवेंट करके एंटीकोगुलेंट थेरेपी यूज़ करते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें अनफ्रैक्चर हेपरीन है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन है और वार्फिन और थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी को यूज़ करते हैं। ये एंटीकोगुलेंट थेरेपी या ड्रग जो कि हमारे पास खून को जहाँ पे क्लोट बना हुआ है इसको क्या करेंगी, डिज़ोल्व करेंगी और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास अनफ्रैक्चर हेपरीन जो कि हम IV देंगे हमारे पास, ठीक है, और ये इसके इस तरह की शेप पे आएगी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे जब भी पेशेंट को हमारे पास एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे रही है तो कंटिन्यूस आपने पेशेंट का APTT और PT लेवल को चेक करते रहना हमारे पास। फिर सबकुटेनियस है मेडिसिन जो हमारे पास पेशेंट को देंगे हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट को हमारे पास पर ओरल जो होते हैं वार्फिन देते हैं हमारे पास, ठीक है, ये वार्फिन आते हैं। अब पेशेंट को जब भी एंटीकोगुलेंट थेरेपी देने के लिए इसमें आपने पेशेंट को कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना हमारे पास, ठीक है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी जो होती है वो हमारे पास इसमें मॉनिटर करना कि उसकी वजह से आपका खून पतला हो जाएगा, ज़रा सा कट लगेगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, सर्जरी या कोई प्लान है तो इसकी वजह से पहले आपने स्टॉप कर देना। पेशेंट जब घर जाएगा उसके लिए बताना कि इलेक्ट्रिक रेजर को यूज़ करें, टेक प्रिकॉशन टू अवॉइड द इंजरी आ जाते हैं, नंगे पाँव ना चले, तो इस तरह की प्रिकॉशन आपने पेशेंट को बतानी है। और जब भी हल्का सा भी कट लग जाए तो इसकी अच्छी तरह हमारे पास पंच वगैरह करनी है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी भी है हमारे पास। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी का एडवांटेज ये होता है कि लेस लॉन्ग टर्म डैमेज टू द वीनस आ जाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि इंसिडेंस ऑफ ब्लीडिंग इससे ज़्यादा होंगे दैन द हेपरिन आ जाते हैं। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के काउंटर इंडिकेशन क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिवली हम यूज़ नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी में हम यूज़ नहीं करते हैं हमारे पास, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट थ्रोम्बेक्टमी यानी वो वेन जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया वहाँ को थ्रोम्बस को रिमूव कर देंगे हमारे पास, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा इंटरप्शन आ जाते हैं हमारे पास, इन्फीरियर केवा वे जहाँ पे आया हुआ है हमारे पास क्लॉट, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा में वहाँ पे कट लगा के वहाँ पे क्लॉट को रिमूव कर देंगे हमारे पास, ठीक है। ये डायग्राम में आपको नज़र आया हमारे पास, ठीक है, किस तरह पहले आइडेंटिफाई करने के बाद जो वीनस सर्कुलेशन कहाँ पे क्लोट आया हुआ है हमारे पास, फिर वहाँ से इसको रिमूव कर देंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइगेशन और एक्सटर्नल क्लिप आ जाता है। इंफीरियर वेनर कैनाल फिल्टर इज नॉट सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग द पल्मोनरी एम्बोलाइज, देन द फिल्टर बिकम द ब्लॉक्ड विद द थ्रोम्बो के जरिए से इसको कर देता है, यानी वेन जहाँ पे ब्लॉक करती है हमारे पास, ठीक है, उसको आपस में लाइगेट कर देंगे हमारे पास, ठीक है, उस लाइगेट के जरिए से उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे हमारे पास, ठीक है। ये डायग्राम है उसकी किस तरह आपको दोनों वेन्स को उसको लाइगेशन कर देंगे हमारे पास। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करनी है, पेशेंट को एंटीकोगुलेंट थेरेपी बताना है, मॉनिटर करना है, कंफर्ट प्रोवाइड करना है और पेशेंट को कंटिन्यूस पोजीशन में रखना है, इलास्टिक स्टॉकिंग पहनानी है हमारे पास, ठीक है, और फर्दर क्लॉट ना बने इससे पेशेंट को आपने प्रिवेंट करना है हमारे पास, ठीक है। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन इसको आपने प्रिवेंट करना है, पेशेंट को एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे रहे हैं तो ब्लीडिंग से प्रिवेंट करना है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लेकिन ऐसे कि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट इनके कम हो जाए, इससे प्रिवेंट करना है और ड्रग इंट्रैक्शन से प्रिवेंट करना है हमारे पास, ठीक है। फिर हेपरिन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो जाता है, इससे आपने रिस्क, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपने हेपरिन की वजह से जो हमारे पास थ्रोम्बोसाइट का लेवल कम हो जाता है, इससे आपने प्रिवेंट करना है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट को बताया कि मैंने एक ही जगह पे ऑपरेट किया, स्टॉकिंग इलास्टिक स्टॉकिंग आपने पहनानी है हमारे पास पेशेंट को, ठीक है। ये सारी आपके पढ़ने वाली नर्सिंग केयर बातें वो आप पढ़ ले रहे, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉनिक वीनस इनसफिशेंसी, यानी अगर हमारे पास वेन्स जो होती हैं वो हमारे पास उनके थीरोसिक्लोसिस होती है हमारे पास, ठीक है, तो इसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाए।
result from the obstruction of the venous valves in the leg and reflex of the blood back through the veins आ जाती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी डीवीटी हो सकती है पेशेंट को पहले से, प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज इन वीनस प्रेशर है, रिजल्टेड वीनस हाइपरटेंशन है। टेस्ट पहले या जिस तरह डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, पेशेंट आपके साथ आएगा पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम के साथ आएगा, पेन के साथ आएगा सुपरफिशियल वेन डायलेटेड के साथ है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके अलावा पेशेंट का आपकी स्किन उसकी ड्राई क्रैक होगी, एचिंग होगी, एट्रोफी के साथ आएगा। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इस एरिया की जो हमारे पास ब्लड सप्लाई है वो रुक गई है हमारे पास। कॉम्प्लिकेशन में इसमें पेशेंट को वीनस अल्सरेशन वहाँ पे जो होते हैं वहाँ पे अल्सर स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैनेजमेंट गोल इसके क्या है आपका, मैनेजमेंट को एंटी ग्रेविटी एक्टिविटीज़ की लेग को क्या करना है, एलिवेट करके रखना है और कंप्रेशन ऑफ द सुपरफिशियल वेन विद इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग के साथ पेशेंट को आपने पहनानी है हमारे पास, ठीक है। एलिवेटेड ऑफ द लेग फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द डे, एटलीस्ट 15 to 30 मिनट तक के लिए आपने एवरी 2 आवर के लिए करनी है। पेशेंट की शुड स्लीप विद द फुट ऑफ द बेड एलिवेटेड फॉर द 15 सेंटीमीटर ऊंचा करके रखना है हमारे पास, ठीक है। वॉक करने के लिए इनकरेज करना है, अवॉइड द कंस्ट्रिक्टिंग गारमेंट वगैरह को पेशेंट को करना है कि लूज़ कपड़े वगैरह पहने हमारे पास, ठीक है। ये इस तरह के पेशेंट की प्रिकॉशंस आपने बतानी है। फिर पेशेंट का अगर ये किया ना तो इसकी वजह से पेशेंट को लेग अल्सर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेग अल्सर इज एन एक्सविकेशन ऑफ द स्किन सर्फेस दैट इज अकर व्हेन द इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक टिश्यू स्लो ऑफ आ जाता है, यानी अगर वहाँ पे अल्सरेशन है ठीक ना हो तो वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। पेशेंट की साइन सिम्टम्स तकरीबन वही है कि पेशेंट का लेग अल्सर के साथ आएगा, प्रॉब्लम अल्टीरियर वीनस ऑरिजिन है, सिवियरिटी एक्सटेंड ड्यूरेशन ऑफ द वास्कुलर इनसफिशिएंसी हो जाएगी, अल्सर ओपन सोर ताकि हमारे पास पेशेंट में वूंड बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। मैनेजमेंट इसकी पेशेंट की क्या करनी है, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, वूंड बन गया हमारे पास, ठीक है, और साथ में डेब्रीवेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओरल एंटीबायोटिक पेशेंट को स्टार्ट करेंगे, डेब्रीवेंट को वहाँ से सर्जिकली रिमूव कर देंगे और फिर वहाँ पे टाइप ऑफ द वेटमेंट द शार्प सर्जिकल डेब्रीवेंट एंड नॉन सेलेक्टिव है, इसमें फास्टन मेथड है हमारे पास, और नॉन सेलेक्टिव डेब्रीवेंट आइसोटोनिक सेलाइन ड्रेसिंग करते हैं हमारे पास, और वहाँ से ड्रेसिंग के साथ जो मैशअप होता है वो रिमूव हो जाता है तो कर देते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर टॉपिकल थेरेपी यूज़ करते हैं रिमूव ऑफ द डिवाइटलाइजेशन ऑफ द टिश्यू के लिए। फिर वोंड डी ड्रेसिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ द ड्रेसिंग आपने एफओ में भी पढ़ी टाइप है, जिसमें हमारे पास टैगापोड इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोकॉलिक इस्तेमाल करते हैं जिसमें ड्यूड्रम है हमारे पास, ठीक है, और टैगा सोल्ट जो होती है वो ड्रेसिंग को यूज़ करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये ड्रेसिंग जो होती है वोंड को अच्छी तरह क्लीन करके हमारे पास, ठीक है, एपकर ड्रेसिंग जो होती है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हमारे पास अल्सर के ऊपर हमारे पास। नेक्स्ट है वेरिकोस वेन है, तो वेरिकोस वेन आर द एबनॉर्मली डायलेटेड टॉर्चर सुपरफिशियल वेन्स आ जाते हैं, मोस्ट कॉमनली जकर इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आ जाती है। वेरिकोस वेन आपको देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि इनकी लेग के ऊपर जो वेन होती है सुपरफिशियल बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है हमारे पास, ठीक है। इससे हमारे पास क्या कहते हैं वेरिकोस वेन आ जाती हैं। पीपल हुज ऑक्यूपेशन इज क्वाइट फॉर लॉन्ग स्टेड, ऐसे जो बहुत ज़्यादा एक ज़्यादा पोजीशन में, यहाँ बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग में या बहुत ज़्यादा ऐसे अपनी टांगों को लटका के बैठे रहते हैं, तो इसकी वजह से ये कॉजेज़ हो सकती हैं। इसकी टाइप या तो प्राइमरी है या सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डीप वेन आ जाता है, सेकेंडरी रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डीप वेन की वजह से हो सकता है। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह आपकी वेन जो होती है वो इसमें ब्लड ब्लॉकेज हो जाता है हमारे पास, ठीक है, और इसकी वजह से जो सुपरफिशियल वेन है वो आपको नजर आएंगे। टेस्ट आपको डुप्लेक्स टेस्ट करवाओगे, एयर पे थैलोस्मोग्राफी करवाओगे, चेंज इन द वीनस ब्लड वॉल्यूम आपको पता है, वीनोग्राफी करवाओगे, इंजेक्ट एक्सरे कंट्रास्ट एजेंट करेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पे ब्लॉकेज आ रही है हमारे पास। प्रिवेंशन कैसे करना है, अवॉइड द एक्टिविटी डेट कोज द वीनोस्टेसिस एंड प्रमोट द लेग सर्कुलेशन को प्रमोट करना, एक्सरसाइज करने के लिए कहना है हमारे पास पेशेंट को। और मैनेजमेंट लाइगेशन थेरेपी को यूज़ करोगे, इंटरवीनस लेजर थेरेपी को, रेडियो रिफ्रैक्टिव एब्लेशन और स्कैलरो थेरेपी को आप यूज़ करते हैं। ये सारी थेरेपी आपको एक एक करके डिटेल में बताई हुई है कि आपने थेरेपी को किस तरह यूज़ करनी है हमारे पास, ठीक है। स्कैलरो थेरेपी में क्या केमिकल इंजेक्टेड इनटू द वेन में, इरिगेटिंग वेन्स एंडोथेलियल एंड प्रोड्यूसिंग द लोकलाइज्ड फिब्राइटिस और थ्रोम्बस वगैरह जो होती है वो हमारे पास रिमूव हो जाती है वहाँ पे। ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि किस तरह आपने स्कैलरो थेरेपी के ज़रिए से हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे जो वेन्स है उस पर ब्लॉकेज आ रही है उसको रिमूव करना है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर क्या क्या चेंजेस आई हैं स्कैलरो थेरेपी के ज़रिए से। दैन द नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है कि पेशेंट को आपने रेस्ट करने के लिए कहना है, फिर उसके 2 घंटे बाद पेशेंट को वॉक 5 to 10 मिनट करनी है। पेशेंट को इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें यह है कि पेशेंट को आपने एक ही पोजीशन में लेटे नहीं देना, पेशेंट को इलास्टिक स्टॉकिंग को प्रोवाइड करनी है हमारे पास, ठीक है। पेन के लिए पेशेंट को एनाल्जेसिया देना है हमारे पास, ठीक है, और इस तरह के पेशेंट की आपने केयर प्रोवाइड करनी है हमारे पास, ठीक है। इनटेक आउटपुट का पेशेंट का ख्याल रखना है, ज़्यादा फ्लूइड डाइट देनी है हमारे पास, ठीक है। और प्री पोस्ट स्कैलरो थेरेपी अगर हो सकती है तो पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन इन द इंजेक्टेड लेग फॉर 1 to 2 days तक रहती है, तो इसको आपने
प्रिवेंट करना है, माइल्ड एनाल्जेसिक देने हैं और फिर ब्लॉकिंग टू रिलीज द, इसका प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेलुलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन ऑफ द डीप वेन ऑफ द स्किन, इसे हमारे पास सेलुलाइटिस कहते हैं हमारे पास, ठीक है। जिसमें एक्यूट ऑनसेट ऑफ द स्वेलिंग होगा, लोकलाइज पेन होगी, रेडनेस होगा, टेंडर होगा, स्किन कलर चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। मेडिकेशन आपने क्या करनी है, पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक आपने 7 to 14 डेज़ के लिए स्टार्ट करनी है हमारे पास, ठीक है। की टू प्रिवेंट द रिकरेंट एंटीबायोटिक प्रोवाइड करनी है, साइट ऑफ बैक्टीरियल एंट्री जो होती है इसको प्रिवेंट करती है। स्किन केयर का ख्याल रखना है हमारे पास, ठीक है। इसकी नर्सिंग केयर क्या करनी है, सेंसिटिव और सर्कुलेटरी डिफेक्टिंग करना है, इंकरेज दे शुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग द रिकरेंट एपिसोड। इसमें एक्सरसाइज करना है, डाइट अच्छी तरह, डायबिटिक पेशेंट को अच्छी तरह गाइड करना है, कितने अपनी स्किन की केयर को किस तरह प्रिवेंट करना है हमारे पास, ठीक है। ब्लेंड हमारे पास लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स है, लिम्फेटिक में हमारे पास लिम्फेजाइटिस है, लिम्फेडेंटाइटिस है, लिम्फेडीमा और एम्फलाइटिस है। लिम्फेटिक सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है कि बॉडी में हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम जिस तरह हमारी बॉडी से जो लिम्फ है हमारे पास, जो हमारे पास नर्व्स है इसके ज़रिए से कलेक्ट करता है हमारे पास, ठीक है। जिस तरह हमारे पास दूसरा सर्कुलेटरी जिस तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी बॉडी में बना हुआ है। लिम्फेजाइटिस क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक चैनल की वजह से जो होती है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इनकी इन्फ्लेमेशन होती है तो इस एरिया में जो हमारे पास लिम्फ फ्लूइड की कलेक्शन है वो नहीं होती, तो इस एरिया में क्या होगी हमारे पास एडिमा से स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास, बट ये इस तरह हमारे पास, ठीक है। लैम्प हमारे पास लिम्फेडीमा टाइप ऑफ द लिम्फेडीमा हमारे पास प्राइमरी लिम्फेडीमा है जिसमें कंजेनिटल हो सकता है, सेकेंडरी लिम्फेडीमा है हमारे पास, ठीक है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट के अक्सर इसमें क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी हमारे पास, डीमा जो होता है सॉफ्ट होगा, पिटिंग होगा हमारे पास। ये डायग्राम में आपको नजर है कि किस तरह हमारे पास बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में जो हमारे पास लिम्फ नोड है, अगर किसी एक हिस्से में भी ब्लॉकेज हो गए तो वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे पे, ठीक है। नेक्स्ट फ्लेरेसिस आते हैं, मोस्ट कॉमन काज वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन इन्फेस्टेशन ऑफ द लिम्फ नोड आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। यानी जो हमारे पास पैरासाइट वगैरह है वो लिम्फ नोड के जरिए से एंटर हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। लिम्फेटिक फ्लेरेसिस का हमारे पास पूरा बताया कि इतना इन्फेक्टिव साइट के जरिए से एंटर होंगे हमारे पास, बॉडी के ब्लड में जाएंगे, लिम्फ वेसल में जाएंगे और किस तरह वो एंटर हो जाएंगे। डायग्राम में नज़र आ रहा है कि किस तरह हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्टेड होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ जाते हैं। मैनेज क्या करना है, रिड्यूस एंड कंट्रोल द डीमा, प्रिवेंट द इन्फेक्शन जो होती है इसको हमने प्रिवेंट करना है। इसको किस तरह प्रिवेंट करना है, एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज पेशेंट को करनी है, एक्सटर्नल कंप्रेशन डिवाइस देने हमारे पास पेशेंट को, फार्माकोलॉजिकल पेशेंट को डायूरेटिक देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, फिर अगर ना तो इसके सर्जिकल जरिए से पेशेंट की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। डेट्स ऑल अबाउट द वीनस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं हमारे पास।